हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम क्या है? तीन फोर्सेस, अगर कंकरेंट फोर्सेस एक पॉइंट पे आ रहा है और तीनों इक्विलिब्रियम है, तो फिर तीनों फोर्सेस के बीच अगर एंगल दिया गया है, दो फोर्स दिया गया है, थ्री सपोज हमें निकालना है, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दैट मीन्स थ्री डिफरेंट वेक्टर्स एक्टिंग एट द सेम पॉइंट्स or three concurrent vectors are there or three concurrent forces are there, we can say that we have to apply this Lami's theorem. This Lami's theorem is applied only for the three forces or three forces acting at a single point. Okay, so let's have a look about the Lami's theorem. Lami's theorem states that if three forces acting at a point are in equilibrium, equilibrium means the resultant forces must be equals to 0. So equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two. Okay, that means let's have a look about this figure. Here three forces are there, A, B and C, or we can say that three vectors are there, A vector, B vector and C vector. Or three forces, A forces, B forces and C forces. These three forces are acting at this single point. Okay, and let's have a look about the angles. Let's take angle between B vector and C vector is alpha, B vector and A vector is gamma, and A vector and C vector is beta. लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये तीनों फोर्स को हम थोड़ा डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं, उसको एक ट्राइंगल फॉर्म में डालते हैं. ओके, सो let's each A force. Okay, now let another force is B. This one is our B force. Okay, and third force is our C. This one is C force. Okay, so A force, B force, C force. Let arrange it like this. इसको अगर हम P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट, ये हो गया R पॉइंट. ओके, P Q R इन ट्राइंगल P Q R. इन ट्राइंगल P Q R अगर हम देखेंगे P Q, इसका ऑपोजिट एंगल क्या हो सकता है, हमें निकालना है. Q R के ऑपोजिट एंगल क्या है और आर पी का एंगल क्या है, उसका ऑपोजिट एंगल्स. फर्स्ट लेट फाइंड आउट द एंगल्स. सो क्यू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के एंगल क्या है, गामा. देन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच अल्फा. देन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच हो गया बीटा. So what about the other angles? Q, P, R. ये दोनों के बीच ये एंगल्स कितना आ जाएगा, ये अगर बीटा आ गया तो ये एंगल्स आ गया मेरा पाई माइनस बीटा. ये अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा. ओके, एंड इफ दिस वन इज गामा देन दिस एंगल इज पाई माइनस गामा. ओके, now in this triangle we can write down the PQ divided by PQ divided by sine of pi minus alpha. It's equals to RP divided by sine of pi minus gamma. It's equals to RQ divided by sine of pi minus beta. अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं, पी क्यू क्या है, पी क्यू इज योर ए वेक्टर. सो ए वेक्टर डिवाइडेड इन साइन पाई माइनस अल्फा इज योर अल्फा विच इज इक्वल्स टू आर पी. आर पी इज योर सी वेक्टर्स बाय साइन गामा. देन आर क्यू is our B vectors by sine of pi minus beta is your beta. So this is our null relationship between A vector, B vector and C vector, और तीन forces के बीच relation in term of the sine angle. So
if three forces acting at the single point, then and all these three forces are concurrent forces, or we can say that in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two. Like A is proportional to the sine of alpha, B is proportional to sine of beta, and C is proportional to sine of gamma. So this is our Lami's theorem. Next, let's have a look about a problems related to this Lami's theorem. Okay, so Lami's theorem के ऊपर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं. A rope is stretched between the two poles. A weight W of 15 Newton hang from it, and find the tension in the two rope or the two parts of the rope. If it makes an angle 30 degree and 50 degree respectively with these two poles. So let's take A is a pole and B is a pole. Okay, पहले रोप इस तरह बंधा हुआ था, उसके बाद यहाँ पर एक वेट देने के बाद और नीचे आ गया इस तरह. यहाँ पर W उसका एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स 15 न्यूटन फोर्स हम यहाँ पर दे दिए. उसके बाद यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएगा, इस तरह हैंग हो जाएगा. दिस वन इज द पोजीशन ऑफ द रोप आफ्टर गिविंग 50 न्यूटन वेट. तो यहाँ पर के बाद वो दिया गया है कि वो एक पोल में 30 डिग्री किया है, दैट मीन्स दिस वन इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 50 डिग्री. सो 15 डिग्री और 30 डिग्री एक्ट किया है. सो यहाँ पर हम पहले ये तीनों फोर्स के बीच यहाँ पर अगर टेंशन T1 है, यहाँ पर टेंशन आ जाएगा T2. सो यहाँ पर ये दोनों के बीच तीनों फोर्स के बीच की हम उसका एंगल निकाल देते हैं पहले. ओके, 30 डिग्री है ये. सो लेट्स ड्रॉ ए पैरेलल लाइन विद दिस लाइन. ये अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, और ये 15 डिग्री है तो ये 15 डिग्री आ जाएगा. ओके, सो व्हाट अबाउट द टोटल एंगल. ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 30 प्लस 90, दैट मीन्स 120 इज द टोटल एंगल. यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 90, दैट मीन्स दिस एंगल इज 105 डिग्री. ओके, देन दिस एंगल इज आवर 30 प्लस 15 इज योर 45 डिग्री. ये दोनों मिला के हो गया 45 डिग्री, और 180 माइनस 45 मीन्स योर अगेन ये 335. इस तरह हम ये तीनों फोर्स के बीच का एंगल निकाल लेते हैं. दैट मीन्स अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू ले लेते हैं वो. तो ये अगर है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा. बड़ी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. दैट मीन्स इस तरफ है W फोर्स, इस तरफ है T2 फोर्स, और टेंशन इस तरफ है T1, और इस दोनों के बीच का एंगल हो गया गामा इज इक्वल्स टू 135. इसका एंगल हो गया W और T1 के बीच अल्फा विच इज इक्वल्स टू 120, एंड दिस एंगल इज योर बीटा विच इज इक्वल्स टू 105. सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका डायग्राम इस तरह आ गया. नाउ वी कैन अप्लाई द Lami's theorem here in this point, because three forces are there, or three coplanar forces are there. So let's apply the Lami's theorem here. Lami's theorem apply करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 by sin beta is equals to T2 by sin alpha is equals to W by sin gamma, or T1 by sin beta. Sin beta means sin 105 degree is equals to T2 by sin 120 is equals to W is a 50 Newton. Okay. So 50 divided by sin gamma is 135. ये आ गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन T1, T2 एंड ये 50 न्यूटन के बीच.
सो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं T1 कितना आ जाएगा, साइन 105 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 135 डिग्री इंटू 50, दिस मच न्यूटन। ये एंड T2 क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 135 डिग्री इंटू 50 न्यूटन आ गया T2। So after putting the value you will get T1 and T2। So T1 and T2 का वैल्यू इस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो साइन 105 का वैल्यू आ जाएगा साइन 75 और साइन ऑफ 135 का वैल्यू आ जाता है साइन ऑफ 45। यहाँ पर साइन 105 का वैल्यू साइन 75 के साथ इक्वल है और इसका वैल्यू है 0.69 की, और साइन 135 का वैल्यू आ जाएगा साइन 45 के साथ इक्वल है और साइन 40 टू 0.45 T2। सो साइन 105 का वैल्यू आ जाएगा साइन 75 और साइन 135 का वैल्यू आ जाएगा साइन 45। उसके बाद उसका वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पर T1 68.3 न्यूटन और T2 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से हम डाल सकते हैं साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 135। साइन 120 इज योर साइन T एंड साइन 135 इज योर साइन 45। सो बाय पुटिंग 1.24 न्यूटन ये आ जाएगा हमारा T2। So in this way we can calculate T1 and T2। So कहीं पर भी अगर तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट में आ रहा है तो we can apply this Leibniz theorem। So go and practice more and more examples। If you have any doubts then you can write it in comment section।